استاد محترم آئے ہیں تو احترام جو ہے وہ لازم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی عکاس صاحب ایک بات سنیے میری. جب آپ ایک تقریر کریں گے نا اس میں 100 پوائنٹ نکل آئیں گے. ان 100 پوائنٹ کو پھر کور بھی تو کرنا ہے نا. ابھی آپ نے کہا کہ وہ انسان ہے, وہ غلطیاں ہوں گی, آگے بھی ہوں گی. اس کا حل یہ ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل میں ایک آپ کے سامنے کوئی غلط بات کر دیتا ہوں, کوئی آیت پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ مفہوم غلط کر دیتا ہوں, اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ بول دیتا ہوں, اب میرا کام ہے رجوع کرنا, توبہ کرنا. ٹھیک ہے جی. ابھی آگے آپ نے کہا کہ ان باتوں کا آپ جواب دیں گے. ابھی مفتی صاحب موجود ہیں, وہ ساری باتوں کا آپ جواب دیں گے. میں بھی انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. جی سعد محترم, یہ عکاس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس کو سنتا ہوں اور میں اس کو لائک کرتا ہوں, تو یہ آگے وہ بات کریں گے. جی السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ طبیعت گھر میں سب ٹھیک ہے؟ سب خیر ہے. اچھا یار دیکھو, آپ مفتی ہیں, آپ عالم ہیں, آپ حافظ ہیں. ہمارے پاس نہ اتنا نالج ہے, نہ ہم مفتی ہیں, نہ ٹھیک ہے. ہماری جو بیسیکلی پرابلمز ہوتی ہیں نا, لائک اسٹوڈنٹس کی, ان کی ریگولر لائف میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, وہ ان کو زیادہ سنتے ہیں. وہ زیادہ تر ٹھیک ہے, وی آر آل آر مسلم, بٹ ان چیزوں پہ زیادہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اب اگر مرزا صاحب کو کوئی بھی بندہ سن رہا ہے نا, تو وہ کوئی باہر سے نہیں آیا, وہ ہم میں سے ہی اٹھ کے ان کو سن رہا ہے. لائک اگر میں مرزا صاحب کو 2 سال سے جانتا ہوں, تو اس سے پہلے میں کس کو سن رہا تھا؟ اہل حدیثوں کو, شیعہ کو, وہابیوں کو, سنیوں کو, مطلب ہر فرقے کو سن رہا تھا, مولانا صاحب کو, طارق جمیل کو. تو اگر میں ان ساروں کو چھوڑ کر اس بندے کو سن رہا ہوں, تو اس کے پیچھے ریزن ہے. مجھے لگا کہ وہ سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوری آواز کٹ ہو رہی شاید. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر میرے ساتھ آپ علمی بحث پہ آؤ گے کہ یار قرآن اٹھاؤ, وہ تو میرے پاس اتنا نالج تو نہیں ہوگا. بھائی کا پوائنٹ یہ تھا کہ مرزا صاحب منی گاڈ کو کہہ رہے ہیں, مطلب لوگوں کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان سے بات کر رہے تھے, کیا نام تھا ان کا, ساجد بھائی سے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. دیکھو پوائنٹ صرف سمپل سا یہ تھا, ایز اے مائنڈ سیٹ کے تھرو, کہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے اور آپ کے پاس وہ ساری اتھارٹیز ہوں گی جو گوڈ کے پاس ہے. ساری سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ مطلب صرف جو جنت میں دی جائیں گی وہ عام انسان کے پاس نہیں ہے. تو وہ ایز اے نالج, علمی پوائنٹ کے تھرو وہ منی گوڈ کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی خدا بن گیا ہے یا وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس لوگوں کو توڑ مروڑ کے پتہ نہیں کیا کیا لیے گئے ہیں, اس کے بعد بابے شاہ کو نہیں, ابا شاہ کو نہیں, ان مقابلوں میں کوئی نہ کوئی چیزیں کہی گئی ہیں. مطلب جیسے میں خود یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نبی کی بات کر رہے ہو, تو نبی خدا کے سامنے کیا چیز ہے؟ کوئی نبی, کوئی بھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اس کو توڑ مروڑ کے لوگوں کو اس طرح بہکا رہے ہو. یار یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہو. اور آپ لوگوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے مرزا, مطلب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں, اس کا باپ بیٹے کی تصویر لگائی ہوئی ہے. مطلب یہ عجیب سی باتیں ہیں جو آپ لوگوں, دیکھو آپ لوگ تو اپنے آپ کو علمی کہہ رہے ہو نا, کہ آپ لوگ نالج والے خبر ہو. بھائی مائک میوٹ کرنا. آپ لوگ اتنا نالج والے ہو کہ آپ لوگوں کی تصویریں بگاڑ کے لگا رہے ہو. میکسیمم پہلے آپ تو علمی بنو. وہ تو چلو بے علم ہے نا, وہ تو غلط کر رہا ہے. یہ تو آپ کو لوگ یہاں پہ لوگوں کو بتا رہے ہو. لیکن آپ جو کر رہے ہو, کیا آپ علمی ہو؟ کیا آپ کو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کرو؟ کسی کی تصویریں بگاڑ کے اس کو باپ بیٹا بنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. جی سر مفتی صاحب. جی جناب عکاس صاحب, میں تو آپ کی ایک بات سن کے یہاں کال میں آیا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جس میں جو اچھی بات نظر آئے تو وہ لے لو. تو میں نے بس مرزا جونیئر جیل میں کے اندر اچھی باتیں دیکھی ہیں, تو وہ میں نے اس کے اندر سے لی ہیں. کیا آپ ان نے یہ کہا ہے؟ جی میں نے یہ کہا ہے کہ ہم سب انسان ہیں, چاہے وہ مفتی ہے. میں اس کو تب اچھے سے نہیں کہہ سکتا ہاں کیونکہ یا بھائی نہ بول رہے کر تھے. کے ٹھیک ہے. میں نے بات ابھی کرنی ہے. پوائنٹ کیا یہی آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر نہیں مجھے کہا؟ آپ سے بھی اچھی بات ملے گی تو میں آپ سے لوں گا, اور جو مجھے آپ سے بری لگے گی میں اس سے اختلاف کر لوں گا. میں سمپل ہے. کیا کہہ رہا ہوں کہ اور یہی آپ نے یہ مرزا کے بات, لیے یہی بات ہے کہ مجھے جس سے اچھے لگے گی میں لوں گا. وہ مرزا صاحب بھی ہے تو میں ان سے لوں گا, اور وہ اگر غلط ہے تو میں ان کو غلط کہوں گا. میں رپیٹ کرتا ہوں, سر میں نے آپ کو جواب دے دیا, میں کرنے کی رپیٹ ضرورت نہیں کرتا ہوں, آپ کو نہیں بات سمجھ آئی نا. میں نے یہ بات سن کے آیا ہوں کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جس سے مجھے اچھی بات کوئی ملتی ہے تو میں لے لیتا ہوں. میں نے مرزا جونیئر جیل میں کے اندر سے اچھی باتیں لی ہیں. کیا آپ نے یہ کہا کہ نہیں؟ یس اور نو؟ میں نے آلریڈی اس کا آنسر دے دیا مفتی صاحب. مجھے نہیں جواب ملا. یس اور نو؟ نہیں, آپ اپنے کوڈنگ جواب سننا چاہ رہے ہیں نا, اس لیے آپ کو نہیں مل رہا.
نہیں ابھی ریکارڈنگ موجود ہے, ریکارڈنگ میں نے لگائی ہوئی ہے. سر کوئی مسئلہ نہیں, آپ ریکارڈنگ لگائیں نہ لگائیں وہ آپ کا ایشو ہے. نہیں مطلب یہ کہ نو کہہ دیں پھر آپ کہ بھائی نہیں میں نے میں یہ نہیں آلریڈی کہا. اپنی ریکارڈنگ ذرا دوبارہ آپ سن لیں, میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ مجھے جس سے بھی اچھی لگے گی بات میں لوں گا. وہ آپ ہے, وہ مرزا صاحب ہے, میں سنتا مرزا صاحب کو زیادہ تر. یہ پوائنٹ یہ ایم جی صاحب مائک میوٹ کریں. آقا صاحب مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آیا, نہ یس سمجھ آیا نہ ہی نو. کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آیا آپ نے یہ کہا کہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں میری ریکارڈنگ سن لو, یہ سمجھ آیا. مفتی صاحب آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ آپ کے اکارڈنگ بات نہیں ہو رہی, جو آپ بات سننا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی, اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میرے بھائی. ورنہ جو آپ سب کو مل چکا ہے, جو نیچے سن رہے ہیں ان کو بھی, جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو بھی مل چکا ہے. کیا سمجھ آیا؟ مجھے تو نہیں کچھ سمجھ آیا. کیا عثمان بھائی آپ کو بھی سمجھ آیا؟ نہیں استاد محترم انہوں نے جواب نہیں دیا. سر وہ آپ کا شاگرد ہے نا, تو اس کو کیسے سمجھ آئے گا نا. یہ دیکھیں بابر مہر صاحب آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو؟ نہیں ساجی مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آئی. چلے میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ساجد ادریس صاحب آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو؟ کون استاد محترم کو نہیں آیا کچھ بھی, ان کو کوئی سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں. ਹੈਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ. ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ. ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੇਖੋ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਭ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਲੂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ. ਚਲੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ. ਕਿਹੜੀ ਛੋਟਿਆ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ. माइक म्यूट करो. अच्छा बात ये है कि मिनट रख लेते हैं, ये मैं स्टॉप वॉच लगा लूँ ना, 1 मिनट मैं बात कर लेता हूँ या 2 मिनट कर लेते हैं. क्या क्या समझते हैं आप? माइक ओपन करके बताइएगा, 1 मिनट के 2 मिनट. मुफ्ती साहब यहाँ पे कोई हमारा कोई डिबेट नहीं चल रही. चलो माइक म्यूट करो, ठीक है. आप माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट. आप रिस्पेक्टेड है हमारे माइक लिए, आप म्यूट बात कर लो ना फिर हूं ना. जो डिबेट नहीं चलती पे तो यब करनी है बस. अच्छा गुजारा ये है कि अब मुझे फ्री टाइम है भाई, मैं फ्री बोलूंगा. जब टाइम भी आप नहीं रख रहे, आप कह रहे थे कि जनाब जो अच्छी बात मिलती है और मिर्जा जूनियर जेलमी से आपको अच्छी बात मिली है, ये कोई कायदा कुलिया नहीं है. वो अच्छी बात तो वो शैतान ने भी कही थी आयतल कुर्सी की. कभी आपने कभी किसी मुसलमान से सुना कि मैं इसलिए ये आयतल कुर्सी पढ़ता हूं कि क्योंकि ये शैतान से मैंने ली हुई है? कभी आपने सुना हो? हालांकि बात तो अच्छी की थी उसने. ये कोई कायदा कुलिया तो नहीं है अच्छी बात जिससे. ये किसने आपको बता दिया? कुरान या हदीस की कोई आयत आप पेश करिएगा कि कुरान कहता है कि जिससे कोई अच्छी बात मिले वो ले लो, चाहे वो भले वो. तो आप माइक म्यूट करें, पहले आप टाइम पर तो रहे नहीं. माइक म्यूट करें ना, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें ना, माइक म्यूट करें. मैं आपको जवाब दे रहा हूँ. माइक मैंने टाइम जब कहा टाइम पे आप आए नहीं है. माइक म्यूट करें, आप माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें. मैं बताता हूँ और आपको मर्ज़ई भी बताता हूँ कि मर्ज़ई मैंने आपको क्यों कहा. ये तरीका नहीं है, आप टाइम पे भी नहीं आए भाई. किसी चीज पर तो रहिए. तुम कादियानी और मर्ज़इयों का यही तो मसला है, अपनी चीज पे टिकते नहीं हो तुम लोग. या तो असूल कोई तय कर लेते हैं ना हमारे साथ कि भाई 1 मिनट तुम बोल लो 1 मिनट मैंने तो आपको पूछा है, आप बोल. इसके ऊपर तो आप फिर अतावले हो रहे थे. अब मेरे पास फ्री टाइम है भाई, मैं फ्री बोलूंगा. आपको सुनना है सुने, नहीं सुनना तो जाइए. अच्छा गुजारा ये है कि ये कायदा कुलिया कहाँ चाहिए? ये कायदा लिख लें, ये डायरी पे लिखें, ये इसका जवाब देना है आपने. वो आयत मुझे बतानी है या हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ बतानी है कि फलां इंटरनेशनल नंबरिंग के अंदर ये है कि जिससे कोई अच्छी बात मिले वो ले लो. यही कायदा कुलिया कादियानी भी बताते हैं. कादियानियों का ये था वो जवाब जो तुम कह रहे थे कि ये मिर्जा जूनियर जेल में और मिर्जा सीनियर को बाप बेटा क्यों कहते हैं और तुमने हमें मर्ज़ई क्यों कहा. ये है वो असल चक्कर कि तुम लोगों की करतूतें कादियानियों से मिलती जुलती हैं.
मिर्जा जूनियर जेलमी की करतूतें मिर्जा सीनियर से मिलती जुलती हैं, इसलिए हमने उन दोनों को बाप बेटा कहा और तुम लोगों को मर्दई कहा, कादियानियों की तरह। वो लोग कादियानी हैं जो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी जो कि मिर्जा जूनियर का बाप है उसको मानते हैं, उनको हम कादियानी कहते हैं। और जो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का जो बेटा है मिर्जा जूनियर जेलमी, उसके जो फॉलोवर है उनको हम मर्दई कहते हैं। ये है असल मसला, समझ आई कि नहीं? जो भी बात करे कुरान तो हदीस से करिए। अपनी कहानियां, लंबी चौड़ी कहानियां सुना के आप लोग निकल जाते हो, कादियानी भी और मर्दई भी। अभी थोड़ी देर पहले वो तल्लत कादियानी से मेरी डिबेट हो रही थी, कह रहा जी मैंने बड़ी तहकीक और रिसर्च करके कादियानियत को कबूल की है। मैंने एक छोटा सा सवाल कर दिया, मैंने कहा कौन सी तहकीक, कौन सी ऐसी चीज थी वो बता दो। कहने लगा जी खत्म नबूवत का एक अकीदा था। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैंने कहा कि वो तहकीकत यहाँ पेश करो। यकीन मानिए कोई आधा घंटा पौन घंटा गुफ्तगू हुई है, सिवाय कहानियां तो यब यब तो बक बक के कुछ भी नहीं मिला। जैसे ये मर्ज़ई अकाश साहब कर रहे हैं, सेम यही करतूतें, कुछ भी नहीं, एक भी चीज सानू लब्भी को नहीं। इतनी दुनिया वो 100-150 बंदा बैठ के सुन रहा था, कोई एक होता है ना कि कोई चीज, तो वो ही काम ये करते, फिर कहते हैं जी हमें मर्ज़ई कहते हो। भाई करतूतें तुम्हारी उन जैसी हैं, जब जिसकी करतूतें जिससे मिलेंगी वो ही कहेंगे, और तुमको क्या कहेंगे। तो ये असल में मसले हैं। ये कायदा कुलिया आप मुझे जरा बता दे मेहरबानी कि ये कायदा कहाँ से आपने निकाला है जी? अच्छी चीज जहां से मिले वो ले लो। आया ये कुरान से है या हदीस से है या तुम लोगों की कोई कहानी गढ़ी हुई है? कहते तुम दूसरे लोगों को कहानियां कहानियां कहानियां, तो खुद तुम लोगों की कहानियां पूरे 24 घंटे खत्म ही नहीं होती। जिस जगह तुम बैठे हो तो कहानियों के अलावा तुम लोगों के पास है ही कख नहीं। तो सबूत दीजिए इसका मुझे। अभी मैं माइक आपका ओपन करता हूं, आपको इजाजत देता हूं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है? और कहानियां नहीं सुनानी। जब आप कहानी सुनाएंगे तो फिर हम बीच में टोकेंगे, आपको बोलेंगे भी, क्योंकि टाइम तो आपने फिक्स किया कोई नहीं, फिर हम आपको बोलने नहीं देंगे। जब दलील देंगे इंशाल्लाह आपकी दलील सुनेंगे, उस दलील का फिर रद्द हम करेंगे। चलें जी अब शुरू हो जाए। यार अगर आपने मुझे उतारना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, आप मुझे उतार सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ आ रही? एनीवन? हेलो? जो कर ओके ठीक है। अगर आपको उतारना है, नहीं उन्होंने मुझे बताया है, सही बात, अच्छा किया मुझे बता दिया, मुझे आइडिया नहीं। अगर आपको मुझे उतारना है तो आप अभी उतार दें। और इसलिए मैं अभी तक नहीं उतरा कि मुबशर साहब कहते हैं कि यार ये देखा इनसे बात करते हैं तो भाग जाते हैं, ठीक है? सर मुबशर साहब अभी आपने जो हदीसें सुनाई आप बातें नहीं कर दें। कुरान या हदीस से हवाला दीजिए। आप लोग कहते हैं मुस्लिम इल्मी किताबी है, ये मुस्लिम इल्मी किताबी होता है, कहानियां सुना सुनो के टाइम खत्म कर लो। आप हमसे क्यों पूछ रहे थे कि भाई मेरा माइक ओपन है कि नहीं? किसी मर्दई से पूछे जो आपका हवारी है। हमारे लोग तो गलत बयानी करते हैं ना, झूठ बोलते हैं। तुम पूछो अपने मर्दइयों से, पूछो जाके आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, और अभी लोगों को पता चल जाएगा कितने मर्दई हैं। कहानी नहीं सुनानी, जवाब दो कि ये जो कायदा कुलिया तुमने बनाया है कि जिससे अच्छी चीज मिले वो ले लो, ये कुरान का कायदा या हदीस का? कि या तुम लोगों ने वो जेलम की अकेडमी से ये बैठ के ये कायदा कुलिया बनाया? जल्दी करो जवाब दो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग मॉडरेटर हो और आप लोगों का जब दिल करता है आप अगले बंदे को म्यूट कर देते हो, ठीक है? मुझे कुरान की आयत, सरेदस कुरान की आयत, ये कुरान की आयत है। मैंने अगली बात को सुननी नहीं। कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, इसके अलावा नहीं कोई बात नहीं, कोई गप नहीं सुननी हमने आपकी। ये गप्पे ना माने हमें, गप्पे नहीं, समझ आई कि नहीं? जल्दी जल्दी कुरान पेश करे और हदीस पेश करे। कुरान और हदीस के अलावा मैंने कुछ आपसे सुनना ही नहीं है, समझ आई कि नहीं? कुरान सुनाइए, हदीस सुनाइए। लोगों को आप कहते हैं मुस्लिम इल्मी किताबी है,
असल दीन और मजहब जो इस्लाम है वो जेलम की अकेडमी के अंदर है। बंद कर देगा मुझे। ओरल सेक्स जो है ना कहाँ पे लिखा है बताइए, करने से कुरान और हदीस में बताइए। डरते हो? हाँ जी बताइए ना, में हिम्मत जवाब भी तो दीजिए ना। ओरल सेक्स जायज है भाइयों। हाँ जी 10 साल की जब लड़की हो जाए तो उसको सेक्स सिखाओ। आप लोगों के हाँ जी ये बताए ना, कुरान दी से सिखाइए हमें। आपका हाँ जी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है आपने सिखाई है। मिनट में जब कादियानी और मर्जियों की लड़कियां 10 साल की हो जाए तो उसको सेक्स सिखाओ। आपने अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी अम्मी को सिखाया कि नहीं सेक्स? बताइए, कुरान और हदीस से जवाब दीजिए। कुरान और हदीस के अलावा मैंने कुछ नहीं सुनना, आप लोग सिर्फ कुरान और हदीस, म्यूट कर। कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। जी उस्ताद मोहतरम, इन्होंने खुद क्लेम किया है तमाम फिरकों को कुरान लानत और देता हूं। हदीस, तमाम फिरके फुरके को आप नहीं, लोग जो यहाँ पे कुरान और बैठे- हदीस, कुरान और हदीस। भाई अभी तुमने बेटर आप मुझे कुरान म्यूट और क्यों कर रहे हदीस हो? पेश करो, म्यूट कुरान क्यों कर रहे हदीस हो के मुझे? अलावा कोई बात नहीं, तुम्हारे कोई घर में बात बैठा नहीं हूं, इसलिए सुननी। म्यूट कर रहा हूं। कुरान और हदीस, कुरान हदीस के अलावा नहीं कुछ भी। You all are barking, you think कुरान that I am हदीस going पेश to करो, जल्दी करो, let कुरान them- और हदीस जल्दी करो। मैं एक बात बीच में कहा था, मेरी बात सुनो। अभी जब तुम लोगों का क्लेम है कुरान और हदीस वो पेश करता है, हम कुरान और हदीस उसकी सुनते हैं। अभी जब मैंने एमजी साहब को एक बात बताई, उन्होंने कहा भाई मैं हाथ खड़े करता हूँ, वो बातें गलत करता है। अभी आप आए, आपने कहा नहीं जी आपने तो बात ही नहीं अपनी सुनानी है, उसकी नहीं सुनी। आप आए हैं, आपने कौन सा कुरान हदीस पेश किया है और कह दिया कि भाई शैतान से भी मैं हम अच्छी बातें हम ले लेते हैं शैतान से। तो दो ना वो हदीस दो, वो कुरान की आयत दो। कुरान और हदीस मरज़इयों तुम लोगों ने रट्टा लगाया हुआ है, लोगों को कहते हैं कि मौलवी गलत बताते हैं। क्या उन तेरा कुरान हदीस मुस्लिम इल्मी किताबी बढ़ के Moderator- मुस्लिम इल्मी किताबी Moderator, कुरान आप और मुझे हदीस म्यूट नहीं के अलावा करेंगे। कोई और बात की मैंने सुननी नहीं है। मुबशर आपके मुंह पे जितना इल्म है ना मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट दिया, लेकिन मॉडरेटर के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को बिला वजह म्यूट करे, ठीक है। और मैं जा इसलिए नहीं रहा कि आप लोग कहेंगे भाग गया, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट बोला है कि आई एम नॉट मुफ्ती, आई एम नॉट हाफिज कुरान, ठीक है। आप लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हो और आपका आपके मॉडरेटर कहानियां नहीं, मुस्लिम इल्मी किताबी कुरान और हदीस पेश कर, जल्दी कर। म्यूट कर रहे हो। कुरान और हदीस पेश करो जल्दी। आपके रूल तुम्हें बोलने का मौका भी दिया, तुम जो है ना कुरान हदीस पेश नहीं कर रहे। योर माउथ। कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, मॉडरेटर कुरान और हदीस जल्दी कर, Moderator- कुरान और हदीस पेश कर। मॉडरेटर आपके रूल्स इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मॉडरेटर आपके रूल्स किधर गए? कुरान और हदीस, इंटरनेशनल हदीस पेश कर, Moderator जल्दी आपके कर। रूल्स किधर गए? मरजई मॉडरेटर मरजई तुम्हारे आकाश बनाने से जल्दी मर्जी कर। नहीं मेरे भाई। अभी मेरे तो बनाने से कोई तुमने मर्जी वो नहीं बनेगा। अपनी बहन को जो है ना आप 10 साल देखो। की उम्र में सेक्स भी साबित करना You है think आपको कुरान लगता और है हदीस के अंदर से। जो भी पेश करोगे कुरान हदीस से पेश करोगे, जल्दी करो। ना तो इसलिए मैं म्यूट होकर बैठा हूँ। आप मुबशर साहब एक दफा खुल के बोल लो, आपने अगर गाली शाली देनी या मर्जी करना है आप खुल के बोलो, अगली बात फिर करेंगे। आप ये है तुम जहाँ लोगों आप में बोल दो ना। मर्जियों में कोई चीज तो लेके आओ ना सामने। कौन सी बात ये जो है? कायदा ये कुलिया सब तुमने बात के बगैर पेश करते किया हैं। मरजई और सुन, जी आप चुप कर, कि जिससे अच्छी चीज मिले वो ले लो 2 मिनट में और जो अच्छी चीज ना हो उसको छोड़ दो। ये कुरान हदीस से पेश करो, ये कायदा कुलिया जल्दी कर। क्या आप लोग जाहिल हो? कुरान से पेश कर हदीस। मैं आप अच्छा, कुरान या कौन सी हदीस, चीज जो- कुरान या कौन सी हदीस, चीज है जो जिनसे कुरान कुरान हदीस या के हदीस अलावा से मैंने बात नहीं तुमसे करते। कोई सुनने ही नहीं। तेरी गप्पे और कहानियां इन मर्जियों की और कादियानियों की अच्छा, बहुत सुन ली हमने। आयतल कुर्सी के तुम बारे में लोगों की शैतान कुरान नहीं और बोला था। हदीस सुननी है हमने। ओ भाई सुन जो लेना, तुम लोग हम दावे तो करते हो कि कुरान से हमने बात है। हम मिर्जा कुरान साहब और कौन हदीस से पे कुरान बात हदीस के करते अलावा नहीं हैं है। आप और जो म्यूट भी करो बात ना, करते मेरी हैं बारी कुरान है और ना। हदीस से पेश करते हैं। ये कहानी जो भाई, तुमने आप सुनाई बंद करो ना, है आप इसको बंद करो। कुरान और हदीस से साबित करो, जल्दी करो। इसको बंद करो, टाइम इसको तुमने म्यूट खुद करो। फिक्स नहीं किया, इसको मैंने बंद तुम्हें करो। कहा था टाइम फिक्स कर लो। अच्छा टाइम फिक्स हाँ जी जल्दी कर, मुझे कुरान और हदीस पेश कर। बंद कर, कुरान और हदीस पेश कर मरज़ई। मुंह बंद करे, मुंह बंद करे। कुरान और हदीस पेश कर। नहीं
मुंह बंद करें ना, 1 मिनट चुप करें, अगले बंदे को बोलने दे। ओए मुफ्ती साहब के साथ तवीज से बात करें, वो आपके साथ आराम से बात कर रहे हैं ना, तू तड़ाक नहीं कर रहे। सुने सुने सुने, वरना मैं इजाजत मर्ज़ई ले लूंगा कुरान और मुफ्ती साहब हदीस से। पेश कर, इधर उधर की मैं तेरी एक नहीं सुननी, एक नहीं सुननी। आप पहले कुरान और हदीस पेश कर मर्ज़ई, मुफ्ती साहब को कुरान और हदीस पेश कर, कुरान और हदीस, इनको कुरान और हदीस पेश कर, जल्दी कर, इनके पास जल्दी कर, कुरान और हदीस पेश कर। ओ भाई मैं बात क्यों कर रहे हैं? कुरान और हदीस पेश करें, मैंने जल्दी करें। सीधा बोला है, सिर्फ और कुरान और हदीस से बात होगी बस, कुरान से बात करें, इधर उधर की कोई बात नहीं। कुरान पाक और हदीस पाक, बस बताओ मुझे, कुरान फजूल दुनियावी बातों में मत पड़े, टाइम वेस्ट ना करें। कुरान पाक और हदीस पाक कर रहे हो, कुरान पाक और हदीस मुझे पाक, आप कह रहे हो कि वो कुरान पाक और हदीस आप पाक। खुद उनसे गए आप गुजरे बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, कुरान शरीफ से शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ें, कुरान शरीफ से शुरू करें। मैं आपको चलें शाबाश, कुरान शरीफ, कुरान शरीफ, बंदे की आप बात ना करें, कुरान शरीफ, या तो कुरान शरीफ या हदीस पूरी बात करें। जब मैं बात करता हूं, मुझे म्यूट कर देते हो। आकाश कुरान शरीफ या हदीस मुबारका। सर आप 1 मिनट म्यूट करेंगे, कुरान शरीफ या हदीस मुबारका। म्यूट करेंगे, कुरान शरीफ म्यूट करो। कुरान दी, इसके अलावा कोई बात करेगा हमने इसको करने नहीं देनी। चल ओ कुरान सर, दी, आप ना करने दें, मेरा कोई यहाँ पे मैं टीवी पे लाइव है, मेरा मुझे इशू नहीं है। मुचर साहब आप चल कुरान पेश करना, कुरान की आयत आप पेश जल्दी कर। बात करें, आप ये जल्दी सूरह बात करें। बकरा फलां आयत है, सुन लेना, सुन ले, सूरह निसा फलां आयत भाई है, चुप कर। सूरह अल इमरान फलां आयत है, सूरह अहज़ाब फलां आयत है। इंटर नंबरिंग भी पेश कर सकते हैं आप। टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम सब लोग, क्या यही मर्ज़इयों की अब मैं औकात बोलूं? है, कादियानियों की भी यही औकात होती है। सब आप बोलो, चल कुरान, कुरान, कुरान पेश कर मर्ज़ई। पहले तो मैं तमाम फिरकों कुरान की आयत, कुरान की आयत के अलावा और कुछ नहीं सुनना। भाई शैतान ने आके कुरान तो की कुछ नहीं आयत बताई थी। पेश करके ये कायदा तुम शैतान लोगों ने ने कहां आके से नहीं बनाया बताई कि थी। जिससे अच्छी बात मिले भाई, वो ले लो, नहीं है। बकाया को छोड़ शैतान ने आके दो। आयत कुरान की नहीं आयत है, और आपने कहा था कि जिससे हदीस, हदीस कुरान की सही आयत और बात मिले, ले लो। हदीस, कुरान की आयत और अगर मैं इंटरनेशनल मुफ्ती नंबरिंग, ये थोड़ी है कि आप लोगों को इंटरनेशनल नंबरिंग और नंबरिंग दो। कुरान, उसके लिए तो फिर कुरान मैं की सबको आयत बुला और के लाऊं हदीस ना। के अलावा कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी कहानियां बंद, तुम्हारा डैमेज हैज बीन डन, तुम्हारे फिरके की दुकान बंद। शैतान ने आके कहा था ना, कुरान, कुरान पेश कर, और मुफ्ती कुरान, सुनेगा तो- हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं। मुफ्ती तो जब सीधा- तेरे मुंह से मैं कुरान सुनूंगा मैं खुद चुप हो जाऊंगा। चलो जल्दी वो आयत पेश कर, वो हदीस पेश करो जल्दी। इंटरनेशनल नंबर बताना है। मुफ्ती साहब नंबरिंग आपने कुरान, बतानी है। कुरान, कुरान, मुफ्ती साहब नहीं, कुरान, मुफ्ती भाई कुरान बोलने नहीं देगा, है, पागल मुफ्ती है, साहब कुत्ता कुरान नहीं है, कुरान कुत्ता पेश गाले। कर और हदीस, कुरान के अलावा सुने कुछ है नहीं। तू? तेरा पहला तू लफ्ज सुने है? कुरान निकलना चाहिए, कुरान की फलां आयत है। अब ये बकवास कर रहा है, गालियां दे रहा है। मॉडरेटर, अगर कुरान की मैंने किसी आयत को गाली पेश दी, कर मैं और लानत भेजता हदीस, हूं। कुरान की मॉडरेटर, आयत आप और मुझे हदीस सीधा कह पेश दो, मैं कर चला जाता हूं। मर्ज़ई, आप- कुरान आप की अगर आयत म्यूट और करना है तो हदीस, मुझे सीधा कह दो। कुरान और हदीस के अलावा ठीक है? तुम लोगों की गप्पे मिर्जा सुननी साहब नहीं हमने, कुरान और हदीस कोई के बात बगैर नहीं बात सुननी, नहीं कोई करते। बात नहीं सुननी। मिर्जा साहब सिर्फ कुरान और हदीस, बगैर बात सिर्फ ही कुरान नहीं और करते, हदीस मुझे मर्ज़इयों का सुनेंगे हम। ठीक है? कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के अगर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को छोड़ के फॉलो कर रहे हैं। वो पागल भी उसको फॉलो कर रहे हैं। कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के बगैर तो वो बात नहीं कुरान और करते। मिर्जा हदीस। साहब आपको किसने कहा कि वो कुरान और मिर्जा के लानत भेजो मिर्जा के ऊपर, दफा करो उस कुत्ते को, पेशाब करो उसके मुंह पे। कुरान और हदीस, कुरान म्यूट और पक्का कर दो, हदीस, ताकि कुरान यहाँ और पे कोई बात ना कर हदीस, सके। कुरान और मॉडरेटर भाई। हदीस। म्यूट शूट को छोड़ो, कुरान और हदीस। अरे वो टाइम वेस्ट कर रहा है, छोड़िए मैं उसको। तुझे ये एम जी साहब नाल गल कर लो भाई, बैठे ने। कर रहा हूं। एक मिनट ठहर जा जी, एम जी साहब जी नहीं गल ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕੁਰਾਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੁਸਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵੈਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆयत हदीस। क्या कायदा किथों बनाया जे कि जिससे अच्छी बात मिले वो ले लो? ਯਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। कुरान ते सुनाओ ना कोई सानू भी।
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹਦੀਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। जी अस्सलाम वालेकुम ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਮਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਬੜ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, MG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। बाकियों को नीचे उतार दें। पहले बकाया को नीचे उतार दो, अभी सिर्फ अभी MG साहब ना बात करिए, कुरान दी से ना को सुनांगे असी भाई। अज दा दिन सिर्फ कुरान दी से कादियानियां कोलों भी ते मरज़इयां कोलों भी, दोवां कोलों कुरान दी सुनना है बस। चलो अपने अपने बाबे नूं साबित करो कुरान ते हदीस चों जो कुछ इन्हां ने बकवासियात कीतियां ने। चलो जी MG साहब शुरू हो जाओ। कायदा कुलिया जेड़ा कुरान ते हदीस चों साबित करना जे कि जिससे अच्छी बात मिले वो ले लो, बकाया को छोड़ दो। ਕੁਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈਏ? ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ। ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਦਾ ਹੀ, ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਕੇਸ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ MG ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਸ਼ਿਫ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ID ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਤ ਫੋਰਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਕ ਯਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 313 ਸਹਾਬਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਫਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਸ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਏ? ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅਜੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾਇਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੁਨਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ, ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਈ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब मेरा नाम मलिक है, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब देखें, बात यह है कि कोई दुनिया में आपकी बात सुन रहा होता ना और जो आकाश साहब थे उनकी बात सुन रहा होता ना। अच्छा चलो न्यूट्रल फिर मैं न्यूट्रल सुनानियां जे कुरान दी तुसी जानदे हो मैं साबित करना। कुरान जिस तरह बोल रहे थे कहानी नहीं, कहानी नहीं बताता हूं आपको। कहानी ना कहानी नहीं सुननी। ਇਹ ਹੋਈ ਮਸਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। शैतान ने जो बोला था कुरान ते हदीस
तो मैं हदीस ही सुना रहा ना मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੇਰੇਗਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ नहीं जी ਹੁੰਦਾ। अच्छा आप सुना दे हदीस जिसमें अच्छी बात नहीं लेनी चाहिए आपके पास तो है काउंटर ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਆਪੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਆਪੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ नहीं ਦੀ तो आपने उनको मरज़ई कैसे बोल दिया आपके पास क्या अथॉरिटी है ਮਰਜ਼ਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਿ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਹੈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं ये आकाश की बात कर रहे हो यार वो यहाँ पे सीखने आया था आपने उसके साथ बदतमीजी की ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ नहीं ਤਮੀਜ਼ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ, ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ, ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਨੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम तलहा साहब जी, हुक्म करो। ठीक जी ठीक ठाक जनाब। इधर सामने आओ जरा, सामने। जी जी जनाब। और रिपोर्टा नहीं मारनियां, रिपोर्टा मारन टुर गए हो। थले लाओ सू, थले लाओ सू। आओ रिपोर्टर। ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸੈਕਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚੋਂ ਫਿਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। जी गल है उस्ताद जी। जी दरवेश साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सलाम अर्ज करन आया जी। मैनू किधर लै लिया जी? मैं ते अगे तुहाडा मुफ्ती साहब ने सही इन्हां दी रग ते हत्थ रखिया कुरान दी सुना, क्योंकि उन्हां नूं आंदा ही नहीं है। इंजी गल है, इंजी गल। चलो थले बैठ के सुनो फिर दरवेश भाई। सही है, सही, बहुत मेहरबानी। ओके मेहरबानी। चलो जी नेक्स्ट आओ जी उत्ते। अयान अहमद हिम्मत कर जरा उत्ते आप उतर, उत्ते आशा वा। नीचे से म्यूट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग नीचे कमेंट्स पर नजर रखते हैं, ऊपर कॉल पे आके बात नहीं करते सही तरीके से, इसलिए। चलो 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 शाबाश। दरवेश भाई टुर जाओ तुसी। चलो भी उत्ते आ भी ज़ुहैब साहब। जी ज़ुहैब साहब। जी जी मुफ्ती साहब जिंदाबाद। आप खुश रहें जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं जी। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। बस थोड़ा बड़े मिर्जे छोटे मिर्जे के बारे की कहते हो? शॉर्ट शॉर्ट दसो जरा जल्दी जल्दी। काफिर है जी, बहनचोद काफिर है, लानती है, दोनों ही? लानत है उस पे। दो में दूसरा वो जो अली मिर्जा उसकी बात कर रहे हैं, वो भी बस वैसा ही है, वो तो लानती ही है एक किस्म का, जैसे गुस्ताखियां करता है, उसको भी हम नफरत ही है उससे भी। ओके हो गया जोए भाई, थैंक यू। थले जाके बैठो ते दूसरे साथी आते ने। एक बात और करना चाहूंगा। कदू उत्ते आ जा, कदू ओ कदू उत्ते आ जा, तेनू दसा विच सेक्ट ऑफ इस्लाम। जी जोए साहब जल्दी बोलना जरा। जी जी सुन रहे हैं, जल्दी बोलें। मुफ्ती साहब से कहें कि मैं आपको सुन रहा हूँ, थोड़ा सा बेशक उनसे आप बात करें, लेकिन थोड़ा सा ना प्यार से भी बात करें। शायद वो इनसे प्यार से बात नहीं हो सकती। जोएब साहब आप नीचे चले जाइए, शाबाश। चलें जी नेक्स्ट आए जी। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है जी? जोएब साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके ओके ओके। इनसे बात कर लें प्यार से तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिन्हों मोढ़े ते बिठाओगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੂਤੇਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ 50 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सर। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने उसको कह के जवाब दिया। हम तो सिर्फ आपको सुनने के लिए आते हैं, इल्म तो हमारा बहुत नाकस है। चलें बड़े मिर्जे ते छोटे मिर्जे के बारे शॉर्ट जरा दस दो जल्दी नाल खाकी साहब। लांती बड़ा मिर्जा लांती छोटा लांती मैं ते शुरू और सर मैं ते शुरू तो नहीं ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਜ ठीक हो गया। ਛੋਟਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਜਰ ਹੋਏਗਾ। चलो ठीक है, मेहरबानी खाकी भाई। नीचे बैठ के दूसरे साथी आए जी। नेक्स्ट जी
ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਕਜ਼ਾਬੀਓ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਅਗਲਾ ਕਾਲਰ ਖਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ सुनो। सर सुन रहा हूँ। कुरान और हदीस से जवाब दें, कुरान और हदीस से। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं। यार मॉडरेटर उस्मान ख्याल रखा करो, माइक जिन्ना दे ओपन होन बंद खुद कर दिया करो, वो वॉइस नहीं जानी। जे खुद नहीं करते तो तुसी कर दिया करो माइक म्यूट। अजे वीडियो चला रहे हैं असी। उस्मान पता नहीं किथे पे। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम। उस्मान चलो उस्मान गायब हो गए। मोहतरम मैंने कर दिया, माइक म्यूट किया है मैंने। वो किदों वो ते बंदा ते अजे बोलदा है पिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, फिर बंदे ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਬਈ, ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया। तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन आए। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992। हाँ भाई मरदइयो आओ भाई, नेड़े लगो। एक चीज कुरान ते हदीस चो साबित करनी जे, गप्पा नहीं चलनी। चलो भाई ये की ना है तेरा काशिफ, शुरू हो जा। PMLN जनाब बोलो, PMLN वाले भाई साहब बोलो, माइक अनम्यूट करो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤੁल्लाह ਹੈ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਜਿਲਮੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ?
ਹੋਰ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ जूनियर वालियों ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, नेक्स्ट किसी ब्रॉडली चाहना। अच्छा, मैं ये ऐलान कर दूं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कादियानी और मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स कॉल डालें, मुसलमान भाई जो हैं वो इस वक्त कॉल ना डालें। कादियानी और मिर्जा जूनियर के फॉलोअर, ठीक है जी PMLN भाई, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है कॉलर बैठे नीचे भाई, कॉलर बैठे हुए प्लीज। ओके, थैंक यू जी उस्मान भाई। नेक्स्ट कॉलर आप नीचे बैठ के सुने जनाब। जी जी बिस्मिल्लाह जी। नेक्स्ट कॉलर जी काशिफ भाई, अभी कोई कॉलर है नहीं है, जैसे कोई कॉलर आते हैं मैं लेता हूँ। तलहा गुजर आया था, लेकिन मैं लेता हूँ दोबारा, अगर वो कोई ऐसी वैसी हरकत ये ना कॉलर करे, नीचे है तो सही जी। ये PMLN वालों को खुद नीचे उतार दें, खुद नहीं जा रही जी। तला साहब ਕੀ ਹਾਲ ਮਸੂ ਠੀਕ ਹੋ जी ठीक ठाक। तला साहब की कहते हो तुसी मिर्जा सीनियर ते मिर्जा जूनियर के बारे च? ਜੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ दो ही? ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ चलो ठीक हो गया। ठीक है फिर फिलहाल तो ऐसी कुरान पाक और हदीस मुबारक के हवाले ले रहे हैं। ਜੀ ਜੀ ਐਂਜੀ जी, जी। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ नहीं, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया जी तला भाई, थैंक यू वेरी मच जी। थले बैठ के तुसी सुनो। हाँ जी, कादियानी और मरजई, मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स और मिर्जा कादियानी के फॉलोअर्स कॉल पर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कॉल्स इनके लिए ही सिर्फ खुली हैं, मुसलमान भाई कॉल ना करें। और मिर्जा जूनियर वाले जैसी कॉल पर आए, सबसे पहले कुरान पाक और अहादीस मुबारका से साबित करना है कि जो अच्छी बात है वो किसी काफिर से भी ले लो। जी जनाब। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। तौहीद के बाद रिसालत का नंबर आता है, लेकिन मिर्जा जूनियर कहता है कि तौहीद के बाद नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसका पसंदीदा टॉपिक आता है। जी जनाब, कॉलर आए जी। जी कौन है जी नेक्स्ट कॉलर? जनाब नेक्स्ट कॉलर कौन है जी? मैं ही ले लेता हूँ। कौन है जनाब? ये रिया। देखते हैं जी ये क्या कहते हैं जी। रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। लानत हो मिर्ज़ा कादियानी पर, और लानत हो मिर्ज़ा जहलमी पर, और लानत हो आला हजरत के मुशरक कुत्तों पर, और लानत हो आपके जमने वाली पर, लानत हो आपके नुतफा बनाने वालों पर, जिन्होंने आपकी अम्मा के अंदर नुतफा बनाया। लानत हो आप उन दोनों पर भी। अब सुन के बेटे जरा महसूस करना, लेके उन नौजवानों के ऊपर जिसने जिन्होंने इस हराम काम में हाथ पाया। आजा मेरा पुत्र। रिया, हिम्मत है तो सामने आओ ना, सामने आकर बात करो। किंग ऑफ हंटर्स आप आए जरा कॉल पे, चलें। शाबाश यार, किंग्स ऑफ हंटर को कॉल भेजे जरा, इनको ना बड़ी वो हो रही है, टेंशन हो रही है। आए जरा, किंग ऑफ हंटर कॉल पे आए जी प्लीज, आए जरा, आए। शाबाश। रिया, तुम्हें दोबारा लूं कॉल पर? अपने किसी एक बाप का नाम बताओगे? बाली, अपने किसी एक बाप का नाम बताओगे? हाँ, ये बाली था, ये मुल्हिद है बाली, और ये किसी यूरोप कंट्री में है। रिया जो है ना, यहाँ पर एक कंपनी है जो जहाँ से लोग पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, ये उनका दलाल है। अच्छा जी, नेक्स्ट गेस्ट है जी किंग ऑफ हंटर्स आ गए उस्ताद जी। ओए 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 ओए। अच्छा, पहले आपने इसको लेना, सैफुद्दीन को। किंग ऑफ हंटर्स थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये सैफुद्दीन साहब आ गए जी। सैफुद्दीन, माइक अनम्यूट करें जनाब, बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। जनाब सब ठीक था। मैं दरअसल मुफ्ती साहब से कुछ सवाल करने थे। अगर क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? मिर्जा जूनियर के फॉलोअर हैं, मिर्जा सीनियर के फॉलोअर हैं? भाई दोनों पे लानत। दोनों पे लानत। तो फिर सवाल जो है ना, सवाल जवाब नेक्स्ट किसी स्ट्रीम में करेंगे। बरेली के मानने वाले। चलो जज़ाकल्लाह,
फिर नेक्स्ट किसी स्ट्रीम में सवाल करेंगे। हमारे पास अभी एक मरज़ई है नीचे, उनसे बात करनी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, माइंड ना कीजिएगा। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला। ओके, थैंक यू जनाब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आओ जी, नेक्स्ट कॉलर ये हैं जी, वो कहाँ गए जी अपना वो हंटर साहब? हंटर साहब कॉल पाओ, हंटर साहब कॉल पा लो, कॉल पा लो, कॉल पा लो। ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ आ गए नहीं को जनाब। ठीक है फंटर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम फैसल है। अच्छा फैसल जी, फैसल साहब आपने आते ही बोला जी आप सब पे लानत क्यों, खैरियत है? मैंने लानत इसलिए कहा है, मैंने वो आपके अबू नजर आ गए थे कि? एक मिनट गल सुनो जी। नहीं नहीं बगाली सुन रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਾ नजर आ गए सर। और भाई मैं भाई देखो मेरी बात सुनो, बात सुनने का तो टाइम नहीं, पहले बताओ कि लानत क्यों की थी तुमने, पहले तो ये बताओ। नहीं तुमने लानत आते ही की थी, तुम्हें अपने 10 में से कोई एक पापा नजर आ गया था, शर्म तुम्हें आती नहीं, ना तुमने सलाम किया ना दुआ, आते ही तुमने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लानत। खोलो माइक अपना, बोलो की कहना चाहते हो। जो मिर्जा इंजीनियर ने कहा है ना कि भाई इनकी औरतों को एक से ज्यादा मर्द मिलने हैं, ये वो ढूंढ रहा है। हाँ। तो ये इसको गुस्सा आ गया है, इसको गुस्सा नहीं वो नजर आ गया ना उसको, उस्मान भाई वो एक से ज्यादा में से एक नजर आ गया इसको। हाँ भाई, हाँ हेलो हेलो, यार आवाज ही नहीं आ रही। कर गया भाई, गुस्सा कर गया। नहीं आवाज ही नहीं आ रही यार, माइक तो अनम्यूट है, आवाज ही नहीं आ रही इसकी। हेलो, पता नहीं यार, मेरा भी यार माइक तो ठीक है, आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। चलो बेटे आज के हेलो मर्दई जी बोलो तो सही। राजी एक लब गया, एक लब गया यार इन्हां नाल सही तो फ्री ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ यार, बता जी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਭ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी राणा साहब। जी जनाब मैं थोड़ा ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਾਲਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਤੇ? ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਾਲ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਉਹ ਦज्जाल ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ? ਐ ਮਰਦਈ ਜੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਖਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ। ਇਹ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਏਗਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੀ जनाब। सुनो तो सही राणा साहब, कुरान और हदीस दी गल करो, जुमे दा दिन को खुदा दा खौफ करो। हाँ जी, जुमे दा दिन है जेड़े बकवास। हाँ चलो, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाह कुरान और हदीस। हाँ चलो, कुरान और हदीस तो साबित करो, जल्दी कर लो फटाफट। की साबित करना दसो, मैं करदा। चलो तो फिर तुसी की लैन आए हो ते कॉल ते की लैन आए हो जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? नहीं ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਝੂਠੇ ਤੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ? ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। चलो कुरान और हदीस की गल करो, जल्दी करो यार। हाँ जी, कुरान हदीस कुरान और हदीस तो साबित करो ना कि शैतान कोई गल करे, सही अच्छी गल करे तो को ले लेनी चाहिए। कुरान तो साबित करो या हदीस मुबारक तो साबित करो, जल्दी करो यार, मिनट मारो, जुमे की तैयारी करनी है। जिस टाइम नहीं इन्हें कोल कोई नहीं है जी, ये भी फारग ही है, फारग ही है, हजरत फारग है। हेलो हेलो
ਉਹ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਹੈਲੋ 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 ਸੈयद ਅਲੀ, ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਕੱਪ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜੀ। ਸੈयद ਅਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਬਈ। उस्मान भाई ऑपरेट करना जरा, मैं अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं, थोड़ी देर तक करना हुआ, ऑपरेट करना प्लीज। उस्मान भाई मौजूद हो? उस्मान भाई मेरी आवाज जा रही कि नहीं? उस्मान भाई यार, उस्मान भाई इस तरह तो मजा नहीं आना ना यार, इतने गेम भखी हुई है इस टाइम ते। वॉइस ओके हुई तो उस्मान भाई पता नहीं किसे टुर गए ने। पप्पू मलक भी लाइन च लग गया, किंग ऑफ हंटर्स भी लाइन च लग गया, मिस्टर याहिया भी लाइन च लग गया, फयाज अहमद भी लाइन च लग गया। भाई अगर आप लोगों में से कोई मुसलमान भाई है जो मिर्जा जूनियर और मिर्जा सीनियर का फॉलोअर नहीं है तो वो प्लीज कॉल छोड़ दे। तलहा भाई आपसे बात हो गई है ना यार, बस ठीक है। अब यार उस्मान भाई, उस्ताद जी मेरी आवाज आ रही? काशिफ भाई मैं आ गया। आप ऑपरेट कीजिएगा जरा, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ 15-20 मिनट में इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। जी याहिया साहब है जी, याहिया साहब को ले लेते हैं। जी मिस्टर याहिया साहब। याहिया साहब ये बताइएगा ज़रा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में आपकी क्या राय है? जी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी तो दज्जाल समझते हैं हम, और जूनियर मिर्ज़े की सही बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं। जी ठीक हो गया। तो सही बातें, और पहले तो गलत बातें बताएं। गलत बातें कौन सी उसकी? यार वो तो सुननी पड़ेगी ना। अब मैं टॉप ऑफ द माइंड में तो हम जो बात सुनते हैं, कोई भी लेक्चर सामने आया था तो हमें पता चल जाता है ये गलत बात कर रहा है, और जो सही बात होती है हमें पता है वो सही बोल रहा है। हमें तुकाला आता जी। नहीं आप, अब हम मेरा कोई वीडियो देखूंगा तो जो बात सुनूंगा मैं बता दूंगा ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। अच्छा, नहीं कोई सुनी होगी ना कोई गलत बातें, वो बता दें। आपने खुद ही कहा कि कुछ उसकी गलत बातें भी हैं। जो खत्म नबूवत फोरम के भाई हैं वो कह रहे थे कि आपने बताना है कि कोई काफिर भी अगर सही बात बताए तो हमें ले लेनी चाहिए। वो कहाँ लिखा है, साबित जी करें। वो आप वो कुरान की आयत और हदीस पेश करें जी। उस्ताद मोहतरम सुन रहे हैं जी, उस्ताद मोहतरम कीजिएगा बात। उस्ताद मोहतरम को तो माशाल्लाह बड़ा इल्म है। सहीह बुखारी की हदीस है 5010 अबू हुरैरा से कि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आप हिफाजत करें ज़कात के माल की, और शैतान आया उसने बोला कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो। तो सुबह उन्होंने ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, और फिर आका ने फरमाया कि वो बात सच है लेकिन तुम्हें शैतान झूठे ने कही थी, जो शैतान था। जी उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं आप? जी लगता है उस्ताद मोहतरम मौजूद नहीं है। अच्छा, वो ज़रा हदीस का मतन पढ़ के सुनाए जी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु के पास कोई शख्स आता था शैतान की सूरत में, ठीक है जी। और जब वो सहीह बुखारी 5010 है। मैंने तो इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, अरबी में तो नहीं पढ़ सकता। अच्छा ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि इससे मुराद आपने ये ली है कि शैतान से अच्छी बात ली जा सकती है, ऐसे ही है? अगर आपको शैतान भी मुझे अगर आके बोले अपने माँ बाप से बदतमीजी नहीं करो, उनकी इज्जत करो, एक मिनट उस्मान भाई, आप पहले नंबर बता दें। नहीं नंबर सही से बताएं मिस्टर ये भाई, आप नंबर बताएं पहले से। सही बुखारी 5010 सही बुखारी जी क्या है उसका मफहूम?
क्या मफहूम है बताए ना। अच्छा बेटा, अच्छा। हमने उनको ज़कात के माल की रखवाली करने के लिए एक जगह पे एक वहाँ पे रखा, तो वहाँ पे एक बंदा चोरी कर रहा था, उन्होंने उसको पकड़ लिया बंदे को और बोला मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो और सुबह तक शैतान इधर नहीं आएगा। तो फिर अगले दिन अबू हुरैरा ने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात सच है, लेकिन जिसने तुम्हें बताई थी वो झूठा है, शैतान। तो इस हदीस का मतलब ये हुआ कि शैतान अगर कुछ बोले तो वो बात ले लेना चाहिए, आपका कहना है। इस हदीस का मफहूम यही है। एक मिनट, आपको सच बोले, अगर कोई काफिर भी आके मुझे बोले कि अपने बाप से बदतमीजी नहीं कर, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तू काफिर है, मैंने तेरी बात नहीं माननी। एक मिनट भाई, बात सुनो। बात हो रही है, क्लेम है आप लोगों का कि दीन की बातें जनाब जिससे मर्जी आप ले लें, उससे आपने हदीस और एक आयत पेश करनी थी, जबकि इस हदीस जो सही बुखारी 5010 है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी जी बेटा एक मिनट, अच्छा, कि जबकि सही बात जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु को तो बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो शैतान है, बिल्कुल नहीं मालूम था। यहाँ पे तो एक मिनट, वो शैतान है, जबकि बात ली गई है नबी अलैहिस्सलाम से। बात किससे ली गई है? नबी अलैहिस्सलाम से, और नबी अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की है हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु ने। हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु को ये मालूम नहीं है वो शैतान है। एक मिनट जरा भाई, महमूद भाई आप बात कीजिएगा जरा, एक मिनट, मैं बेटे को जरा ना। हो गया उस्मान भाई, ठीक हो गया जी। या भाई, इस हदीस से जो साबित होता है ना, ये बाद में जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक दी। जब उन्होंने तस्दीक दिया ये जो बात है ना जो आयतुल कुर्सी वाली पढ़ने की, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ है, ठीक है ना, ये शैतान वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो जो बातें करता है वो उसको कैसे आप एक तरीके से आप गलत भी बोलते हैं, एक तरीके से सही भी बोलते हैं, तो कैसे उसको उसकी बातें जो है ले सकते हैं आप, ये बताएं। नहीं, मैं उसकी बाहर बात को एंडोर्स नहीं करता, मैं हर एक को सुनता हूँ, जिसकी बात मुझे अच्छी लगती है, सब समझ आती है, दलाइल सबसे मजबूत लगते हैं, मैं वो बात ले लेता हूँ। बेशक मैं अहले सुन्नत घराने से, अगर किसी शिया की बात भी मुझे लगे जो बड़ी मजबूत और दलील के साथ बात है, मैं वो बात ले लूंगा। मैं या मुझे कोई काफिर भी कोई अच्छी बात बताए, जैसे अपने बाप से बदतमीजी ना कर, ये मैं वो बात भी ले लूंगा। मैं नहीं बोलूंगा तू काफिर है, मैं तेरी बात नहीं लेंगे। जी मैं आ गया हूँ, एक मिनट बात सुने। काफिर भी अच्छी बात बताए तो क्या ये बात जैसे है ना, कि जैसे कहते हैं कि मिर्जा इंजीनियर ने कोई बात ऐसी बताई हो कि जो पहले किसी ने ना की हो, ठीक है। अब कुफार हैं, वो भी अहले किताब में से हैं, क्या उनकी कुतुब में अच्छी बातें नहीं लिखी हुई? हम बात कर रहे हैं दीन इस्लाम की, कि अब किसी भी फासिक व फाजर, कोई शैतान मलऊन, इसी तरह ये फार्मूला जो आपने लगाया है, ऐसे तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबें भी हैं, उसमें भी आपको अच्छी बातें मिल जाएंगी। तो क्या आप वो अच्छी बातें उससे लेकर ये कहेंगे कि वो उससे पहले किसी ने नहीं की, वो इस्लाम में क्या पहले मौजूद नहीं थी? माज अल्लाह, अभी ये जो आपने मैं ये तो नहीं कहूँगा, एक मिनट बात सुनिएगा, हदीस बयान किया, ये कादियानियों की दी हुई हदीस है, ये कादियानी पेश करते हैं, और इस पर मिर्जा इंजीनियर ने भी पेश की हुई है, जबकि बात नबी अलैहिस्सलाम से ली गई है, शैतान की नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु को तो मालूम ही नहीं है वो शैतान है, नबी अलैहिस्सलाम तस्दीक फरमा रहे हैं। और आयतुल कुर्सी पहले से नाज़िल शुदा है, मेरी बात सुने, आयतुल कुर्सी पहले से नाज़िल शुदा है, नबी अलैहिस्सलाम ने तस्दीक फरमाई है कि बिल्कुल ये बात ठीक है। जी बेटा, और यही बात के कुरान की आप जब इसका पढ़ेंगे ना, फ़ज़ाइल कुरान बाब है, फ़ज़ाइल कुरान, ये कुरान के फ़ज़ाइल में है। शैतान को भी मालूम है कि जब ये कुरान नाज़िल हो रहा है और इसमें क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, जो जब पढ़ा जाता है उसको तकलीफ़ होती है,
اور اس نے بتایا کہ پھر یہ آیت الکرسی پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی ہے. بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی گئی ہے، نہ کہ شیطان کی. تصدیق فرمانے والے ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. بے شک وہی ہے. بے شک. اور آپ کے ابھی یہ جو گلی میں کوئی چلتا پھرتا کوئی شیطان ملعون وہ آ کے آپ کو کہتے کہ بھائی اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، تو کیا یہ بات کسی مسلمان نے کی؟ کیا آپ یہ کلیم کریں گے نہیں یہ بات مجھے اس نے بتائی ہوئی ہے؟ بس بات ہو رہی ہے کہ دین اسلام ابن سیرین رحمہ اللہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، آپ ایک محفل میں موجود تھے، اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سنوں گا. اس نے کہا میں حدیث سنا دیتا ہوں. فرمایا میں نہیں سنوں گا. اس نے اصرار کیا، لیکن حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے، جبکہ وہ صحیح بخاری کے مسلم کے راوی ہیں، وہ ثقہ راوی ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ، جس کے بارے میں مرزا انجینئر ملعون نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کا دین ایمان ختم ہو گیا ہے، وہ مرتد ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اس ملعون نے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے ثقہ راویوں میں سے ان سے حدیث لی گئی ہیں، جب وہی مرتد اور وہی اپنے ایمان سے غائب ہو گئے ہیں، اپنے ایمان سے خارج ہو گئے ہیں، تو ان حدیث کو وہ کیوں مانتا ہے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے سامنے قرآن پیش کرتا اور اس کے بارے میں غلط مفہوم تشریح جیسے کہ باطل عقائد والے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ اس وقت کے جو لوگ فرقے جیسے کہ خوارج تھے، قدریے تھے، معتزلہ تھے، جب وہ حدیث وہ آیت وہ مفہوم ایسے بیان کرتا اور وہ جو چیز ہے وہ میرے دل میں بیٹھتی کہ اس نے مجھ سے ایسی بات بیان کی ہے، تو میں وہ بات بھی اس سے نہیں سننا چاہتا. قرآن بھی اس سے نہیں سنا، حدیث بھی اس سے نہیں سنی. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دور رہنا ایسے لوگوں سے میں حدیث آپ کو کہو گو تو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں. ابھی فرمایا ہے کہ دور رہنا ایسے لوگوں سے کہ ایسی باتیں بیان کریں گے کہ جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہ سنی ہوں گی. جا کے پڑھ لیں اس کی، جا کے آپ اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں کیسے وہ حدیث پہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں ہے ہی نہیں. حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کو اس نے ظالم کہا، حدیث میں کہاں لکھا ہے وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہوگی، وہ نہیں لکھا. اسی طرح اس نے بہت سی قرآن کی آیات پہ جھوٹ بولا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں اس کافر کذاب کی ہم نے بات لینی ہے اس طرح کر کے کہ کافر سے بھی اچھی بات لے لو، معاذ اللہ. لو پھر کافروں سے قادیانی اسے جا کے لو اچھی باتیں. یہ قاعدہ کلیہ ہے ہی نہیں. تبھی تو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ ایک قرآن کی آیت ایک حدیث پڑھو کہ جہاں پہ یہ بات ملتی ہو کہ کافر سے بھی دین کی بات لے لو، کافر سے بھی بات لے لو دین کی. نہیں دین کے بعد چلو اگر کوئی فرض کریں قادیانی جو ہیں، اگر وہ آپ کو بولو 5 وقت کی نماز قائم کرو تو کیا آپ اس سے وہ بات نہیں لیں گے؟ میں چلو ہے تو کافر نہیں، تو کیا وہ ہمارے اسلام میں پہلے سے موجود نہیں؟ وہ تو باتیں تو ساری ہمارے علماء نے 1400 سال سے موجود ہے نا. اب پھر لیکن سارے مسلمان نمازیں ابھی بھی نہیں پڑھتے نا آپ کے سامنے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ہم بات جو ہیں وہ اپنے بڑوں کی لیں گے، نہ کہ اس کی جان کے لیں گے کہ اس نے کہا ہے جی اس کی مان کے لیں. اب ہم قادیانیوں کی براڑ پر چلے جائیں، وہ کہے جی کلمہ سناؤ، فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کلمہ سناؤ، درود سناؤ، تو کیا ہم ان کے پابند ہیں؟ ان کے کہنے پہ سنائیں گے کلمہ اور درود؟ نہیں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں شرم آئے گی اس بات پر کہ ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ درود میں محمد کا نام، کلمے میں محمد کا نام، جس سے وہ مرزا غلام قادیانی کو مراد لیں گے، تو ہم ان کے سامنے کلمہ پڑھیں گے. اور بھائی اس کے بعد ہم کیوں لیں گے؟ اس سے بات ہم کیوں لیں گے؟ ہمیں ہمارے علماء نے نہیں بتائی، اسلام نے نہیں ہمیں بتائی کہ کافر کذاب سے لیں گے ہم وہ بات. نہیں ہمارے علماء نے تو بتائی ہے. میں آپ اتنے ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی جی تسی نا انج کرو، تسی لو انہاں دیاں گلاں تے سانوں بس جواب دے جو اونیاں چنگیاں گلاں جڑیاں نے سانوں بھی پہنچیاں نے. مفتی صاحب کو بھی میں بڑا سنتا ہوں، مفتی صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ایسے کرو میرے بھائی، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں مجھے مرزا انجینئر کی کون سی بات، یہ ہمیں جواب دو اچھی باتوں کا، ہمیں بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے باتیں. اس نے یہ جو کہا نا آپ کی عمر کتنی ہے میرے بھائی؟ آپ کی عمر کتنی؟ جی میری عمر ہے 35 سال. آپ کی 35 سال عمر آپ کی، یعنی کہ 25 سال رہ گئے آپ کے منی خدا بننے میں، ایسے ہی ہے جی؟ یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی.
ये तो आप मर्जी की तावील है ना, ये बात छोड़े, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मैंने आपको पहले बोल दिया, ठीक है, मैंने खुदा वाली। लेकिन मुझे जो मिर्जा इंजीनियर की चीज अच्छी लगती है, वो जो राफजी वो जो रद्द करता है, जो अहले बैत के दुश्मनान है और जो मौला अली के दुश्मनान है, मैं उसकी वो चीज को बड़ा पसंद करता हूँ, वो चीज मुझे उसकी अच्छा पसंद है। अच्छा अच्छा, चलें मुझे फिर उसकी ऐसे जो साफ करें, बात है। वो राफजियों का रद्द करता है कि राफजियों की नाजियों हमायत का करता है, रातों वो रात बाद रद्द में करता है, मैं मुझे वो बताता पसंद है हूँ। उसकी बात। आप मुझे ये बताएं ना, मैं बताता हूँ राफजियों का रद्द करता है या वो राफजियों का भाई है, वो बताता हूँ नहीं नहीं, आपको। नाजियों का, सॉरी, मैं रद्द जो भी रद्द करता है, मुझे उसकी जो चीज, जो देखिए, मुझे जिसकी जो जी चीज जी जी। पसंद है वो तो मैं अच्छा साफ मुझे मुंह पे ये बोलूंगा। बताएं कि मौला अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए और उनको मुसलमान कहा, दूसरा उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, उनके लिए मगफरत की दुआ फरमाई। ये कुरान की कौन सी आयत और कौन सी हदीस में ये बात लिखी है, तो ज़रा बता देंगे कि ये वो नासबियों का रद्द करता है, मौला अली से जो मोहब्बत है उसका इजहार करता है। ये मौला अली की ये कहाँ पे ये रिवायत और हदीस है, या कुछ आयत में लिखा हुआ है कि मौला अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए, उनको मुसलमान कहा और उनके लिए दुआए मगफरत की? ये ज़रा वो हदीस बयान कर दें, आयत कोई पेश कर दें ज़रा। ये ऑन द टॉप ऑफ द हेड तो नहीं है, लेकिन ये आपको मैं रेफरेंस निकाल के आपको जरूर दे दूंगा। अगर उसने भी ये बात की होगी तो जरूर उसने वो रेफरेंस देगी की होगी, उसके बगैर नहीं की होगी। मैं उसको कोई नहीं दफा कोई नहीं कर रहा, मैं रेफरेंस नहीं उसकी ना हर बात से दिया, एग्री नहीं करता, मैंने तो पहले बोल दिया। यही तो हम कह रहे हैं, आपसे भी तलब क्यों कर रहे हैं हम? ख्वारिज आपको पता है कौन है ख्वारिज? जी जी, मैंने सुना हुआ है इनके बारे में। अच्छा, ख्वारिज का पता है, वो बदतरीन मखलूक और जहन्नम के कुत्ते, और उनका कत्ल किया गया और उनके लाशों के ढेर बनाए गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जहाँ पाओ इनको फिर कत्ल कर देना। तो क्या ये मौला अली की गुस्ताखी नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएं कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं और इनको जहाँ पाना इनको कत्ल कर देना, और ये बदतरीन मखलूक हैं दुनिया में, तो फिर क्या मौला अली फिर उनको मुसलमान कहेंगे? क्या मौला अली फिर उनको यार देखिए, ये बात तो जनाजे मुझे खुद पहले पढ़ाएंगे? सुननी पड़ेगी अपने कानों से, तो फिर मैं अच्छा इस पे सुना कुछ देते हैं सकता। आपको, ये सुनिएगा तो जरा, ये देखिए, आप एक छोटा ये सा क्लिप सुनिए पेश जरा। कर देंगे ना, उसका फायदा नहीं है। मैं खुद, आप हाँ मुझे पूरी वीडियो का लिंक भेज दें, मैं पूरी देख के फिर मैं इस पे आपसे गुफ्तगू कर लूंगा, भाई और गलत जाके बोला होगा मैं आप बोल दूंगा उसने गलत बोला है, बड़े डंके की चोट पे। डंके की चोट पे नहीं, ये बोलेंगे नहीं ना, हमें पता है। आप यार मैं जाके आपको ना कह रहा हूँ, मैं लिखिए, आपको डंके की आप चोट जाके पे लिखें बोलूंगा उसने ख्वारिज गलत के बोला है। जनाजे, ख्वारिज के जनाजे लिखें, ख्वारिज के जनाजे बाय मिर्जा इंजीनियर अली। चले, उससे मैं सवाल हुए देखूंगा हैं, जाके। उलमा ने उसका रद्द किया। उलमा ने कहा इसने बदतरीन गुस्ताखी मौला अली की और गाली दी है मौला अली को, और इसने बदतरीन गुस्ताखी की है और हदीस का मुनकर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनकर मौला अली को साबित किया इसने, इस खबीस मलून ने। और फिर इसके ऊपर सवाल हुआ, इसने कहा पानी में मदानी ना डालो, जबकि ख्वारिज हैं जो ना उनको काफिर कहा गया और ना ही वो मुनाफिकीन में से थे। तो फिर दो ही कैटेगरी है, उसके बाद वो मुसलमान है, तो बस मुसलमान है, मुसलमान का जनाजा होता ही होता है। ये उसने एक मन गढ़ंत बात पेश की है। तो कहते हो तो मैं वो हवाला भी आपको सुनाता हूँ, पहले वो वीडियो सुने आप, जाके फिर सर्च कीजिएगा, ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं। चले, मैं आगे ने ये जो वीडियो। बात की है, हाँ जी, पता है बात, पता क्या है, पता आप सबको होता है, लेकिन जब पूछो ना तो आप लोग कहते हो ना 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 ना, पता ही देखिए कख भाई, नहीं है मैं सानू, तो कसम ਅਸੀਂ उठाने ਹੁਣ के सर्च जा रहा हूँ, मैंने करांगे आज ਤੇ ये ਅਸੀਂ पहली ਹੁਣ दफा, इंज करांगे। मैंने ये बात आपके पहली दफा सुनी है ख्वारिज वाली। मैंने पहले, अगर मैंने सुनी होती मैं आज इस पे आपसे बात कर लेता अभी के अभी। मैं डरता नहीं हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें, मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा ये मेरे भाई थे, भगोड़े हो गए, मैं इनको मुसलमान ही समझता हूं। अपने हाथों से दफन किया, उनकी औरतों को लोंडियां नहीं बनाया। और जब जनाजा पढ़ाया जाता है उसमें दुआए मगफिरत होती है, अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना। लिहाजा जो मौला अली के मानने वाले हैं वो किसी सहाबी को गाली नहीं देंगे। हाँ, जो बनु उमैया के मानने वाले हैं तो ये बिदअत उन्होंने ही शुरू की थी, तो वो उनके। ये वीडियो जो है ना 24 मिनट 17 सेकंड की है। आप जहां पे कहेंगे मजीद आगे मैं रोक दूंगा। आगे चलाऊं कि रोक दूं?
نہیں جو میں نے ابھی چھوٹی سی کلپ سنی ہے میرے خیال سے وہ یہاں پہ جس سے بات کر رہا ہے وہ اہل تشیع کوئی بات نہیں، یہ شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے. ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضرت امیر معاویہ مولا علی پر لعنت کیوں کرواتے. ابھی آپ ہم پہ یقین نہیں تو ابھی آپ اوپن کر لیں. نہیں میں جا کے اس کو ضرور دیکھوں گا. جو میں نے چھوٹا نہیں ابھی آپ کے سامنے چلا رہا ہوں نا، اس کا بتائیے تو صحیح نا، کم از کم کچھ یہ قرآن دی سے ثابت کرنا ہے. دیکھیں وہ جو اس نے فرقہ بنایا علمی کتابی مسلم علمی کتابی، تو اس علمی کتابی فرقے کا موٹو اور سلوگن یہ ہے جی ہم تو قرآن حدیث والے ہیں. تو بھائی ثابت کر دینا قرآن حدیث سے. مولا علی کی جو اس نے گالی دی ہے، مولا علی کو توہین کی ہے، اس کو ثابت کر دیں. ویڈیو چلاؤں اگر اجازت دیں تو. نہیں میں ویڈیو خود دیکھ لوں گا ایک دفعہ، میں دیکھوں گا اس نے ریفرنس دیے کہ نہیں، پھر میں آگے آپ سے اس پہ بات کر لوں گا. چلیں ٹھیک ہے، ابھی آپ پھر جائیے. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਯਾਰ. ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਾਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਭਾਈ? ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर जी मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ. मैं शॉर्ट सी बात करूँगा वीडियो के टॉपिक के हवाले से. आपका टॉपिक नहीं, इतने भी मसरूफ क्या हो गए आपके? कुरान हदीस ही नहीं. अब कुरान हदीस की आयत, एक आयत बड़ी है, एक हदीस बड़ी है इंटरनेशनल, बस गल खत्म. ये ऐसे कोई है कोई राकड़ साइंस से नहीं चलानी पैनी कुरान हदीस वास्ते. जी जनाब, हाँ जी फरमाओ. जी खबीर साहब माइक अनम्यूट करें. ओ खबीस बोल तो ले यार. चल मैं अपने वालों नहीं आख्या उस्ताद जी, ना पहला लफ्ज ही पप्पू मलक जो गाली दे रहा था मिर्जा इंजीनियर की तरह, वो दोबारा आ रहा है कॉल पे, लेना है उसको. मैं ले लिया कॉल पे, आप जरा डील कीजिएगा. कौन है भाई यार? टाइम से आओ ना कॉल पे. नहीं वो घूम ही जा रहा है. बात करें अपना माइक अनम्यूट करके. खबीर साहब कोई बोलोगे अभी कि नहीं? वालेकुम सलाम. मैं बस यही कहना चाह रहा था कि यार आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप उर्दू सीखें. कुरान हदीस भी पेश करना है कि नहीं? तो कुरान हदीस ਉਹ ਦੱਸੋ. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ. ਕੋਈ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸੈਕਸ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ. ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਏ. ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ. बात तो सुन लो, कब्रों के पुजारी, बात तो सुन लो. वालदा ओरल सेक्स कर दीजिए कि नहीं? ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ओरल सेक्स ऐज सच जायज है भाइयों. कुरान दी इसमें जायज है भाइयों, ऐज सच कोई ममानत नहीं है भाइयों. कुरान दी से साबित करना है. कुरान दी चो साबित करना जे सेक्स सिखाया जे कि नहीं बाजी नु. बताओ जरा उस्ताद मोहतरम को ना खपाओ, मुझसे बात कर लो. इधर मुझसे बात करो, कुरान और हदीस से साबित करो जरा. एक मिनट खबीस बात सुनो. खबीस जोड़ नहीं बचाता. खबीस एक बात सुन लो. खबीस एक बात सुन लो. खबीस मेरी बात सुनो. बात तो सुन लो ना. अब तुम बोली जाओगे तो बात सुनोगे नहीं. ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता. मैं ना मानू. कुरान और हदीस से साबित करो ना यार. जरा इधर तो आओ ना.
नाम देखो, तुम्हें अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत नाम दे दिया, खबीस हैं। तुम्हें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं अपनी तरफ से, तुमने अपना नाम खुद खबीस रख लिया। देखो मोअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, ये है वो लोग जिनको दुनिया में ही लानत पड़ेगी और वो अपना नाम बदल के अपना नाम खबीस रख लेंगे। ये देखें, इसने अपना नाम खबीस रखा हुआ है, खबीस। अच्छा मेरी बात सुनो ना, तुमने सबसे पहले इल्जाम लगाया कुरान और हदीस से बात करो ना यार। देखो कुरान और हदीस से बात करो, ओ पे जान देनी यार। अच्छा तो बड़ी आती है भाई, कसम है। अच्छा वो कुरान और हदीस से वो कादियानी भी भागता है और अबू मरज़ई भी अपना ही नारा गा के खुद भाग रहे हैं कुरान और हदीस से। जी भाई, आपने पहले भी मुझे निकाल दिया यार, ये तो गलत बात है कि आप बात करने नहीं देते। नीचे चले गए थे खुद ही आप, आपको शायद कॉल आ गई थी इसलिए रिपोर्ट ना हो तो आपको नीचे उतारा था। ये अच्छा, बात अच्छा, करिए। अच्छा, मेरी बात वहीं पे रुक गई थी कि याया ने जो आपको हदीस बताई वो बिल्कुल दुरुस्त यहाँ पे लगती है। आपको कुरान हदीस से बात बता रहा हूँ कि शैतान ने आके बोला कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, और इंटरनेशनल नंबरिंग पहले लिखा दें, मैं खोलना चाहता हूँ कौन सी है इंटरनेशनल नंबरिंग, और हदीस की किताब कौन सी है। अब वो इंटरनेशनल नंबरिंग लेके चलेंगे। और जी ये कहते हैं कि अबू हुरैरा रजी ताला अन्हु ने शैतान से ली, जबकि हजरत अबू हुरैरा रजी ताला अन्हु को तो नहीं ये तो जिरा अजे नहीं करनी, हजे नहीं जिरा अजे नहीं करन दियो, इन्होंने हदीस पहले पेश करन दियो, फिर अगला जवाब मेरे को लै आवे। वो मैं ना लितर भ्यों के रखे ने कोल। ठीक हो गया, वो फिर चले गए हैं, फिर इन्होंने कहना है कि मुझे उतारा क्यों है। नहीं वो जान बुझ के पहले ये तो सुनना चाहने पे, वो पहले हदीस ले आएंगे ते अगे जीरा दे बाद चो करांगे ना ओदे उत्ते। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल हदीस नंबर तो लिखवा दे पहले, आप कह तो रहे हैं 5010 सही बुखारी भाई बताया तो है मैंने। एक मिनट, ये बुखारी सही बुखारी 5010 ਇੱਥੇ रुकिया जाए जरा, पैरों की मिट्टी ना छड़िया जाए। सर जी अगर बोलने देंगे तो फिर मैं समझा पाऊंगा ना। मिनट पहले मैं कट दे लाना यार, थोड़ा साह भी तो लगो ना, साह ते लेदा हुंदा है। मैं दौड़ा जा रहे हैं या तुसी दौड़े जा रहे हो? अच्छा नहीं मैं इधर ही हूँ, आप हो जाओ। पांच 5010 अच्छा जी, चलें जी सुनाएं हदीस हमें, चलें जी हदीस सुनाएं जनाब। हदीस मेरे सामने है, बुखारी शरीफ की 5010। हेलो, चलो वो पढ़नी भी कोनी चाहती। आवाज आ रही है मेरी? बड़ी आवाज होंदी पे, हदीस पढ़ के सुनाओ माशाल्लाह। हेलो, चलो यार बंदा है की है वो नीचे पढ़ने के लिए जाता है, उसे ये लगता है कि मेरी उनकी आवाज आ रही है, वो नीचे जाता है आवाज आती नहीं है, वो बोल रहा है नहीं वो पिछों मिर्जा जूनियर दा फोन होंदा है, फिर निकलिया किथे फस गए हैं। ओ फोन होंदा उन्हें कहा चंगा भला मैं फिरका बनाया है ते मौलविया ने फड़ के लित्र फेरने ने थानू जी। हदीस पढ़ के सुनाइए जनाब, ऐसी बात है कि हदीस पढ़ के सुनानी है। आपने 5010 सही बुखारी से हदीस निकाली है? बिल्कुल सामने मेरे खुली पई है, मुझे पढ़ के दिखा दो। मैं क्यों पढ़ के बहावा जी? हदीस तुसी पेश की कि मैं पढ़ के सुनाओ? चलो शुरू हो जाओ। चलो फिर टुर गए। तेनू पुत्र मिर्जा जूनियर जेल में तंग करदा है पे पिछों, वो पिछों ना तंग करदा हुंदा है मिर्जा जूनियर जेल में मरदइयां नू। लोगों के साथ बहस करने का कोई हदीस सुनाइए, गप्पा नहीं, हदीस पढ़ के सुनाए, हदीस पढ़ के सुनाए, पढ़ के सुनाए, शुरू हो जाए।
حدیث پڑھ کے سنائیے, حدیث پڑھ کے سنائیے, اگلی کل کو نہیں, حدیث سنائیے. چلے چلو نا. ہیلو. اچھا استاد محترم, ایک بات میں یہاں پہ بیان کروں گا کہ اس حدیث میں راوی بھی جو ابن سیرین رحمہ اللہ ہیں, وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے جن کا بھی ایک واقعہ میں نے بیان کیا کہ انہوں نے خود ایک شخص سے آیت اور حدیث سننے سے منع کر دیا تھا. تو اس حدیث کے راوی بھی وہی ہیں, محمد بن سیرین رحمہ اللہ. سدو یار انہاں نو کتھے ٹر گیا وہ 510 سالہ انٹرنیشنل. لکھ رہا ہے کہ جب آپ فالتو بحث کر کے بات حدیث سنا پتر ادھر اتے آ مرزائی اتے آ, گپاں نہیں کہانیاں نہیں تواڈے کو سننیاں. چل مرزائی اتے آ جلدی آ. مرزائی نو کال پاؤ یار. میں تے انہوں گھیرا بھی پایا تے پر وہ آ ہی نہیں رہا انہوں تے. یار مرزائی اج کسی نے حدیث اج دنیا دا پہلا مرزائی لبا جے مینوں, بلکہ قادیانی بھی ایسا اج تک سانو نہیں کوئی لبا, پہلا آیا جے. بھائی میں آ گیا, میری بات سنو, میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ جو میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنائیے. حدیث پڑھ کے سنائیں. دیکھو پھر وہی بحث ہے, پھر مجھے جانا پڑے گا کیونکہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں جو میں آپ کو عربک چلے جائیے, کوئی احسان تو نہیں آپ کر رہے, دعوے تو تم لوگوں کے قرآن اور حدیث والے ہیں. حدیث پیش کی ہے جب 510 تو پڑھ کے بھی تو سنائے نا, پڑھ کے آپ نے سنانی ہے, میں نے تو نہیں. تو بھائی میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں نا. کیوں مفہوم بتا رہے ہیں؟ پھر لوگوں کو یہ کہا کریں کہ ہم حدیثوں کے مفہوم بتاتے ہیں, حدیث نہ بتایا کریں. انٹرنیشنل حدیث نمبر 510 بخاری, یہ کہا کرے کہ انٹرنیشنل مفہوم نمبر, یہ کہا کرے انٹرنیشنل مفہوم نمبر 510, یہ کہا کریں. حدیث نہ, اس کو حدیث کا نام نہ دیں. میرے سے ایک بندہ پہلے جو مفہوم نہیں, مفہوم نہیں, ہمیں حدیث چاہیے. حدیث متن کا نام ہے, مفہوم کا نام نہیں ہے. وہ تو آپ کی حدیث ہوگی نا, پھر مفہوم تو آپ کا ہو گیا, تو آپ کی حدیث ہو گئی. اللہ کے نبی کی حدیث تو نہ رہی. پھر حدیث پڑھ کے سنائیے, حدیث کیا ہے. ہاں ان ویٹ اور گئے ہو. یار تینوں ہی لے کے بیٹھا رہنا سی. وہی کہہ رہا ہوں نا, بتا رہی کیا. او یار بھائی پھر کہنا سی نا کہ مفہوم نمبر انٹرنیشنل مفہوم نمبر 510 تھانوں 5010 لیتا ہوں میں, اس سے پڑھے نہیں کر رہا, لیکن میں بات یہ کہہ رہا ہوں. چلے پڑھے جلدی کریں, گپا نہیں کہانیاں نہیں. دیکھو چلو پڑھو, چلو پڑھو حدیث پڑھو. یار کی ہے تو, ہے تیری اٹھک بیٹھک ہی شروع ہو گئی ہے, کدی اگے کدی پیچھے, کدی اگے پیچھے. او بھائی نیچے جا کے تمہاری آواز نہیں آئے گی, تیری اٹھک بیٹھک چل رہی ہے, آواز ہمیں نہیں آئے گی ایسے. اوپر رہو. تو بھائی میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, ویڈیو کلپ دیکھا تھا, اور اس کلپ سے میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتا سکتا ہوں. میں نے حدیث یاد نہیں کی تھی, آپ پھر وہی بحث کر رہے ہیں. یار یہ آ کے آپ نے یہ کہنا تھا نا. دیکھو ایک مرضی جی, ایک منٹ, آپ نے ٹینشن میں آ گئے ہو, ایک منٹ رکو ذرا, ایک منٹ رکو نا ذرا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو جی بخاری شریف کا انٹرنیشنل مفہوم نمبر 510, یہ کہنا چاہیے تھا. آپ کو پھر حدیث نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ مفہوم تو آپ کا اپنا ہے نا, آپ کا ذاتی ہے نا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا مفہوم نمبر انٹرنیشنل 5010. چلو میں یہی چیلنج آپ کو کرتا ہوں کہ آپ 5010 پڑھ کے دکھاؤ مجھے. وجہ کیڑی وجہ, تو کوئی سانو کوئی وجہ بھی تو دسو نا, سی کیوں پڑھ کے سنائیے, تو کیوں پڑھ کے سنائیے, کوئی وجہ بھی تو دسو. قادیانی بھی یہی کہندے نے کہ دعویٰ اسی کیتا جے دلیل تسی دیو جی. کیوں دئیے دلیل اسی؟ دعویٰ کس چیز کا, کس نے کیا؟ دعویٰ آپ نے کیا ہے اس حدیث کا. کس چیز حدیث کا دعویٰ آپ نے کیا ہے نا. ہاں تو حدیث تو صحیح ہے. ہاں تو سنائیے, سنائے نا, سنائے.
फिर बात वहीं पे आ जाती है। तो भाई वहीं पे आ जाती है, आप कहे कि नहीं आपको पढ़नी आती, आप जाहिल आदमी हैं, कहे तो बोल दिया मैंने, मुझे नहीं पढ़नी आती। अरे जाओ फिर इतने की लेना आए हो? मैं तो समझाना आया वो तो उसी समझाना है कि जाहिल ने एक आलिम ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਆਕੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਆਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਓ ਯਾ ਮਰਦਈਓ, ਯੱਬ ਯੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨਵਾਂ ਮਰਦਈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪੜਵਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਜਾਂ ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਦੀਸ। क्या करो इंटरनेशनल मफहूम नंबर। चलो नवी सुन लो। ओ काशफ संभालो भाई। Και έχει δύο εδώ τα φαρτέζα, θα φτάξει το τόστ. Αυτό το θες εσύ το πάρεις? Όχι. Φουρνάκι, με δουλεύει. उस्ताद मोहतरम, इधर मेरी तरफ अजान हो रही है और ज़रा बच्चा भी तंग कर रहा है, तो थोड़ी देर तक मैं आऊँ, फिर ब्रॉड शुरू करता हूँ दोबारा, जैसे आपका हुक्म। शुरू कर लेते हैं, नवी मंजी ठोकांगे, कोई गल नहीं, ठीक हो गया। बंद करो ब्रॉड, शुक्रिया उस्ताद, खत्म करो, ठीक। वालेकुम।